Very good morning. Welcome to the last part 8 of class 5, lesson number 2, that is shapes and angles. So, students, we are currently solving workbook that is on page number 30. We'll be starting with question number 15. So, let us see what the question says. As you can see on your screen, it says, do as directed in the following figure. The first question, indicate the right angle. So, students, you are supposed to mark all the angles which are right angle, that is 90-degree. So as you can see over here, I'm marking all the right angles with red color. So students, here is one angle and here is the second one. Okay, so these two are right angles. Next, indicate the angle less than a right angle. So students, I'm going to mark the same with black color, that is which is less than a right angle. So less than right angle is over here, students, that is angle BOC. यही मैंने आपको जो बोला BOC, this is not important for you, this is just for your reference. Okay, now last, that is indicate the angle more than a right angle. So I'm going to mark the same with green color. So here I'm marking the angle which is more than right angle. Okay, so I hope students, all of you have understood this particular question, that is question number 15. All right, so I'll revise once again. All the right angles are being marked with red color in the following image diagram. Next, all the angles which are less than right angle is being marked with black color over here, and all the angle which are more than a right angle are marked with green color, as you can see on the screen. So we'll continue with the next question, that is match the following, question number 16. So now students, there are three columns, section A, section B, and the last column is of answer. So we'll have to match section A with the section B. Let us see what the first diagram says. As you can see over here, this diagram, so when the lines are straight, it means very clear that the angle is a right angle. So you will be marking this with B. As you can see, right angle is over here. So what you will be writing in the answer column? So the answer for the first question is option number B. So you will write B over here. Next, if you look at the next diagram, that is over here. As I told you, students, for anything which is more than right angle, the gap should be more than 3. जैसे कि अगर आप एक क्लॉक को कंपेयर करोगे तो इमेजिन करो स्टूडेंट्स कि यहाँ पे 9 आता है, ओके, और ये जो इसका दूसरा वाला हैंड है, इमेजिन आप क्लॉक करो, आप इमेजिन करो कि आपके सामने ये डायग्राम है ना, ये जो है ये क्लॉक के 2 हैंड्स हैं, ये आवर का है और ये मिनट का है. तो ये आवर वाला हैंड जो है स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे 9 पे है, और ये वाला जो हैंड है हम अज्यूम करेंगे ये 2 पे है. तो अब आप इमेजिन करो, मतलब कैलकुलेट करो कितना गैप है यहाँ पे. 10, 11, 12, वेट, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर. ये 10, 11, 12, 1 और 2. तो देखो कितना गैप है, 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो स्टूडेंट्स 5 का गैप है, राइट. द गैप इज ऑफ मोर देन 5, मतलब ये आपका बनता है मोर देन राइट एंगल. तो इसका आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी. तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है हमारा सी. और ऑब्वियसली लास्ट वाला जो ऑप्शन बचा है दैट इज ऑप्शन ए, जो कि है लेस देन राइट एंगल. सो 3 में आप लिख दोगे ऑप्शन ए, दैट इज लेस देन राइट एंगल. ओके, सो let us proceed with the next question. So students, the answer for match the following is, the first one is B, second is C, and the third is A. Let us go to the next question, that is question number 17. Now measure the angles given below by a protector and write their measure in the box. मतलब आपको नीचे यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, वो आपको आपके प्रोटेक्टर से मेजर करके उसका क्या मेजरमेंट आता है वो आपको यहाँ पे लिखना रहेगा. सो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज आप तभी कर पाओगे जब आपने इस लेसन का पार्ट 4 वाला वीडियो अच्छे से
किया है, देखा है, समझा है, तभी आप इस चीज को कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आपने इसका पार्ट 4 वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप फटाफट जाके पहले लेसन नंबर 2 का पार्ट 4 वाला वीडियो देखें, ताकि आपको क्लैरिटी आए कि किस तरीके से आप प्रोटेक्टर से आप उसको मेजर कर सकते हैं। तो अब मैं आपके सामने आंसर सिर्फ लिख दूंगा सभी क्वेश्चंस के, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन सा डायग्राम कितना एंगल मेजर करता है। सो आपका ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम है स्टूडेंट्स, ये मेजर करता है 135 डिग्री। ऑलराइट, अब कैसे आता है उसके लिए प्लीज refer part 4 of lesson number 2, that is shapes and angles. Talking about the second image. The second image shows us 90 degree. Okay. Now talking about the third one, it gives us a measurement of 50 degree. Fourth, the answer is 45 degree. Now last, ये वाला स्टूडेंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो, जब भी कोई लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है ना, तो बाय डिफॉल्ट मतलब बिना कुछ कहे उसका मेजरमेंट होता है स्टूडेंट्स 180 डिग्री। आई रिपीट, व्हेनेवर द लाइन इज स्ट्रेट, इट इज ऑलवेज बाय डिफॉल्ट बिना कुछ कहे उसका मेजरमेंट होता है 180 डिग्री। अब आप बोलोगे सर लाइन अगर ऐसे है तो स्टूडेंट्स, लाइन चाहे ऐसे स्ट्रेट हो, ओके देखो मैं आपको बता दूं, लाइन चाहे ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो, कैसे भी हो, द थिंग इज कि वो लाइन सीधी है। ओके, अब देखो आप बोलोगे सर ये तो सीधी है, ये टेढ़ी हो रही है। स्टूडेंट्स, वो टेढ़ी मेजर नहीं किया जाएगा। वो टेढ़ी में आप क्या देखोगे, आप जब डी यहाँ पे रखोगे तो आपका 0 यहाँ पे आएगा। मतलब आप जब इसको मेजर करोगे ना, बाय डिफॉल्ट आपका आंसर आएगा 180 डिग्री। ऑलराइट, टॉकिंग अबाउट द लास्ट क्वेश्चन, द आंसर फॉर दिस इज 75 डिग्री। ओके, so students, I hope all of you will get the same answer that is being written over here. Let us go on to the last question for this chapter, that is question number 18. Okay, now the question says, look at the clock carefully and answer the following questions. मतलब क्वेश्चन में हमें दिया है कि आपको ये क्लॉक जो दी हुई है आपको वो देखना है और आपको कुछ क्वेश्चंस आंसर करने हैं। तो क्वेश्चन पढ़ने के पहले आओ हम एक बार इस क्लॉक को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये जो क्लॉक है, इस क्लॉक में स्टूडेंट्स करंटली टाइम जो हो रहा है वो है 9 o'clock। ओके, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो मैं हर बार बोलता हूं कि लाइन अगर ऐसी स्ट्रेट होती है तो वो बनता है आपका राइट एंगल। इस केस में भी देखो स्टूडेंट्स, जो आपकी लाइन है, फर्क क्या है कि मेरी लाइन इधर गई है एंड इनकी लाइन इधर गई है, बट इवन देन उनकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये भी बाय डिफॉल्ट आपका काउंट होगा राइट एंगल में। मतलब ये भी आपका है 90 डिग्री। ओके, तो आओ अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टाइम डज द क्लॉक शोज? सो एज डिस्कस्ड, द टाइम दैट द क्लॉक इज शोइंग इज 9 o'clock. Alright, next question number 2, which type of angle is formed by the hands of the clock? मतलब क्लॉक का जो हैंड्स है उससे क्या एंगल फॉर्म हो रहा है, तो अभी हमने वो चीज डिस्कस की, इट इज राइट एंगल। ऑलराइट, नेक्स्ट, इफ द क्लॉक शोज 9:15, मतलब अगर क्लॉक में टाइम हो रहा है 9:15, तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, अभी आपको ये जो 12 पे हैंड है आप उसे भूल जाओ और मैं आपके सामने अभी जो डायग्राम बनाने जा रहा हूं आप उसे कंसिडर करना। 9:15 अभी हो गया, तो अगर ये टाइम है ओके, तो कौन सा एंगल बन रहा है, विच टाइप ऑफ एंगल विल बी फॉर्म्ड बाय द हैंड्स ऑफ द क्लॉक? ओके, तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स, ऑब्वियस सी बात है कि जो गैप है इसके और इसके बीच में, वो अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6 का गैप है, तो आपका आंसर आएगा मोर देन राइट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, अब आप मुझे बोलोगे कि सर ये तो पूरी स्ट्रेट लाइन बन गई ना, तो क्या आप इसे स्ट्रेट लाइन नहीं लिख सकते? नहीं स्टूडेंट्स,
अभी तक हमने स्ट्रेट लाइन या ऐसा कोई एंगल अभी तक मैंने आपको सिखाया नहीं है, वो भी एक एंगल बनता है, पर उसका डिस्कशन जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब उसका डिस्कशन होगा। हाँ, जो इसका एंगल बनेगा, जो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ओके, ये लाइन को अगर मैं ऐसे लंबी करूंगा तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो इसका जो मेजरमेंट है, इसका जो एंगल है स्टूडेंट, वो होगा 180 डिग्री। ऑलराइट, सो लेट अस लुक एट द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेसन। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स के इफ द क्लॉक शोज 2 o'clock, what type of angle will be formed by the hands of the clock? अब एक काम करते हैं, अभी मैं देखो यहाँ पे है ना स्टूडेंट्स, देखो मैंने ये 2 o'clock बना दिया। अब आपको क्या करना है, मैं जो लाइन आपको इग्नोर करनी है ना, मैं उसको ब्लैक कलर से बॉक्स कर दूंगा ताकि आपको वो चीज ना दिखे। आप इस लाइन को अभी भूल जाना, अभी आपको सिर्फ ये वाली रेड कलर और ये जो 12 पे है आपको उसको काउंट करना है, उसको आपको कंसिडर करना है। नाउ इफ यू काउंट द गैप बिटवीन दीज टू, तो देखो स्टूडेंट्स गैप कितने का है, 1 और 2, सिर्फ 2 का गैप है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि whenever the gap is of only 2, the answer is always less than right angle. Okay, so with this we complete our lesson number 2, that is shapes and angles. I hope students all of you have understood this chapter, and students please make a note of one thing. जैसे अभी आपके सामने स्क्रीन पे अब मैं जो दिखाने जा रहा हूँ, वो वाला क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है स्टूडेंट्स, तो आप इस चीज को अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज मेजर द एंगल्स, और इस चीज को सीखने के लिए आपको पार्ट 4 का वीडियो अच्छे से देख के समझना है। और एक बार आपका वो ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आपके लिए होमवर्क ये भी रहेगा स्टूडेंट्स कि अभी आपके सामने स्क्रीन पे जो सारे वो दिख रहे हैं नंबर्स, मेजर ऑफ एंगल्स, आप प्रैक्टिस में आप इन सभी एंगल्स को प्रोटेक्टर की हेल्प से एग्जैक्ट 30 डिग्री, 74 डिग्री, 95 डिग्री, 120 डिग्री आप ड्रॉ करना। ओके, so with that you will get a better practice of how to use the protector. So with this I'll end the lesson, that is shapes and angles. Thank you.